عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ آج ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور سینئر سیاستدانوں سے، پارلیمانی لیڈروں سے یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ اسلام آباد کے شہریوں کو چینی کے مسائل جو درپیش ہیں ان کا کیا تدارک ہوگا، ان کا کیا حل نکلے گا۔ سی سی پی کی جانب سے وبانگ دول خزانہ کمیٹیوں میں بتا دیا گیا ہے کہ شوگر ملز مالکان اور ذخیرہ اندوزوں نے چینی کی مد میں اربوں روپے منافع کما کے جیبوں میں ڈال لیا ہے، جبکہ اسلام آباد کے چھوٹے دکانداروں کی پکڑ دکڑ بھی کی جا رہی ہے اور ان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ سستی چینی کیوں نہیں بیچ رہے۔ دوسری جانب دکاندار یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں ایک توڑا لائنوں میں لگ کے دیا جاتا ہے اور گاہک ہم سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں، چینی مہنگی بھی دی جا رہی ہے اور ملتی بھی نہیں ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم پارلیمنٹ ہاؤس آئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں سے، سیاستدانوں سے کہ اس کا تدارک کیسے ہوگا اور کیوں نہیں کیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سیر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم بتائیے گا کہ یہ چینی کا جو خود ساختہ بحران پیدا کیا جاتا ہے، پھر شوگر ملز مالکان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوز اس میں فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، مار یا تو دکاندار کھا رہا ہے چھوٹے طبقے کا جس کو بند کیا جا رہا ہے، یا پھر عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ایک سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی ہے جس کا فائدہ صرف کاروباری حضرات کو ہے، جنہوں نے جو بنیادی ضروریات ہیں، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ ایڈیبل کوئی آئل ہو، ہر چیز کو کاروبار بنا دیا ہے۔ جب کماعت کی جو ہے اس کا وقت ہوتا ہے ہارویسٹنگ کا، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس چینی وافر مقدار میں موجود ہے، یہ آپ جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں، تو تب جو ہے نا ہم جو ہے وہ شروع کریں گے اپنی شوگر ملز۔ لیکن جب جو ہے وہ چینی آ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایکسیس ہے، اب اس کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیں۔ یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ہے نا، یہ جو ایک طبقہ ہے کاروباری، یہ لوگ یا شوگر مل اونرز یہ جو ہے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہ فارمر کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کو ریٹ پراپر ملتا ہے، نہ ہی کنزیومر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ عوام کو ہمارے لیے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی۔ چینی امپورٹ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، کبھی سبسڈیز مل جاتی ہیں، کبھی ٹیکس ایگزمپشن مل جاتی ہیں، کبھی امپورٹ ہو جاتی ہے، کبھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، اور یہ گورکھ دھندا جاری رہتا ہے۔ یہ صرف چینی پر نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو یہی صورتحال گندم پہ بھی ہوئی، اور جو ہے 2200 ملین کا نقصان اٹھایا گندم کے کاشتکاروں نے۔ یہی جو ہے صورتحال چینی پہ بھی ہے۔ میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کا کوئی ایسا محکمہ ہے جو اس جو ہے جو ڈیٹا ہے اس کو انالائز کرے کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے، آپ کے پاس اسٹاک کتنا ہونا چاہیے، کتنے عرصے تک ہونا چاہیے، کس وقت آپ کو جو ہے وہ اپنا اسٹاک مینٹین کرنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خرابی جو ہے ان کی اپنی جو ہے ڈیٹا کیپنگ کے اندر ہے، ان کی اپنی نیت کے اندر ہے، تو یہ نیت میں فطور ہے۔ مجھے تو ابھی افسوس ہو رہا ہے کہ یوم آزادی تو ہم منا رہے ہیں بڑے جوش و خروش سے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام کو تو ریلیف دے۔ میم کچھ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، لیکن وبانگ دول سی سی پی نے یہ ظاہر کیا ہے مختلف کمیٹیز میں، وزارت خزانہ کو بتایا کہ ان شوگر ملز مالکان کو اربوں روپے کا جو ہے فائدہ دیا گیا ہے، تو یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کا تدارک کیوں نہیں حکومت کر رہی؟ دیکھیں، اب کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ ہی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ شوگر مل مالکان کیسے منافع کما رہے ہیں، نہ یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ فارمرز کیسے پس رہے ہیں، نہ یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ جو عوام ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے کیسے دبے ہوئے ہیں۔ لیکن تمام ان کھلی باتوں میں جو ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی بہتری عوام کے لیے نہیں آ رہی، یعنی یہی کاروبار چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر جو ہے حکومت واقعی سنجیدہ کوششیں کرنا چاہتی ہے تو بیانات نہ دینا، پھر کنٹرول کرے، اس لیے کہ یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے ہے کہ کنزیومر کو افورڈیبلٹی کے اندر جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ ملیں۔ اگر اس کو نہیں ملتی، آج آپ کا گروور پریشان ہے، آج آپ کا کنزیومر پریشان ہے۔ فوڈ سیکیورٹی از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی جو کمپرومائزڈ ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جن کے اوپر
توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن جو ہے مطلب اب آپ یہ سوچیں کہ ہر عام فہم شخص، ہر ایک عام شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، ایک دن امپورٹ ہو رہی ہے، ایک دن ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ایک دن امپورٹ کی اجازت، ایک دن ایکسپورٹ کی اجازت، ایک دن ٹیکس ایگزیمپشنز اور ایک دن منافع خوری. یہ اب مطلب ہر شخص سے سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان حلقوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا جو یا تو مڈل مین ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ اوپر ایلیٹ کلاس ہے جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہم آپ خود بھی ایک فارمر ہیں، کیا یہ سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہے ایک فارمر کو تھکانے کی کہ وہ گندم، وہ جو کماد ہے وہ اس کو کاشت کرنا ہی چھوڑ دے؟ دیکھیں فارمر کولیپس کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم واقعی اپنے ملک کو نیشنل سیکیورٹی کے ایک ایشو کے طرف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ فارمر کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ نقصان مسلسل برداشت کرے ایٹ دا کاسٹ آف لائک دا حکومت کی نااہلی یا جو ہے میں یہ کہوں گی کہ بد انتظامی. دونوں صورتوں کے اندر یہ فارمر کا قصور کیوں اس کا نقصان جو ہے فارمر اٹھائے. یعنی فرٹیلائزرز کی پرائس جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کرتی حکومت، ٹھیک ہے، وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. آپ کاشت کا وقت آئے تو آپ دیکھیں فیول ڈیزل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ہل چلانا مہنگا ہے، ان پٹس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو ایک گروور جو ہے جو اپنی بیسک انویسٹمنٹ جو ہے ریکور نہیں کر پاتا تو وہ کیسے سسٹین کرے گا، وہ کیسے یہ بوجھ اٹھائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہاں جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا، جو کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں، جن کا کام صرف منافع ہو رہی ہے، ہاں وہ تو شاید سسٹین کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام گروور اگلی دفعہ گندم اگاتے ہوئے بھی سوچے گا، کم ہاتھ لگاتے ہوئے بھی سوچے گا، ایڈیبل آئل لگاتے ہوئے بھی سوچے گا. یہ بھی عجیب چیز ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے کاشت ہونے لگتی ہے، آپ کو سرسوں کا یا رایا کا کینولا کا ٹائم آتا ہے تو پتہ لگتا ہے ایڈیبل آئل آپ کا امپورٹ ہو گیا. گندم کا وقت آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ گندم امپورٹ ہو گئی. شوگر کین کی ہارویسٹنگ کا وقت آتا ہے تو پتہ لگتا ہے جی آپ کے پاس تو وافر مقدار میں اسٹاک موجود ہے، اب وہی ایکسپورٹ ہو گیا، وہی امپورٹ ہو گیا. تو یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو منافع ہو رہی ہے، بس اس سے اللہ تعالیٰ قوم کو محفوظ رکھے. اب یہ ہے میں کہوں گی پاکستانی قوم کو کہ چینی کھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، دانے گندم کے اپنے گھر کے لیے اگائے. اور جو ہے ورنہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر انفیکٹڈ گندم جو ہے وہ سپوائلڈ گندم آپ لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی عوام وہی کھائے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستان کی عوام کی صحت سے بھی کھیل رہے ہیں. دیکھیے یہ مافیاز ہیں، ہر حکومت میں یہ مسئلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے کہ وافر مقدار میں ہر چیز موجود ہے اور پھر اس کو ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں صرف مل مالکان کے ہی فائدے ہوتے ہیں. اور میری نالج میں یہ ہے کہ یہ سارا اس کا نتیجہ ہے کہ ٹیکس لگائے گئے تھے اور سب، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی نیت کا پتہ چلا ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے نہیں چاہتے تھے. انہوں نے ٹیکس نیٹ میں لیا، سب کیا، لیکن انہوں نے مافیا ہے. تو میرے خیال میں ہر حکومت کو ہی ان سے لڑنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون سی گورنمنٹ کامیاب ہوتی ہے. میم ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کی بجائے یہ چھوٹے دکانداروں کو پکڑ دکڑ کر کے اندر کر رہے ہیں، اپنی اس جو ہے وہ کمزوری کو چھپانے کے لیے. طریقہ صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. بتائیے گا کہ چینی مافیا کو کنٹرول کرنے میں حکومت کیوں ناکام نظر آ رہی ہے، اور شوگر مل مالکان جو ہیں انہوں نے بھی اربوں روپے کمائے ہیں جبکہ سارا بوجھ چھوٹے دکانداروں پر اور عوام پر ڈالا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کا جینوئن سوال ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ کئی سال سے اس میں حکومت خود انوالو ہے. اگر حکومت انوالو نہیں ہوتے تو ان کو کیوں اس طرح چھوٹ دے دیتے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو ہے نا اس میں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس کے اوپر ایک اسکینڈل بنا تھا جس میں ان کا ایک جہانگیر ترین صاحب بھی چلے گئے. اس طرح بہرحال اس وقت انہوں نے پہلے سے چھوٹ دیا تھا کہ آپ چینی کو آپ برآمد کریں، اور جب وہ برآمد کر دیے اور انہوں نے وہ ریبیٹ بھی لے لے اس کے اوپر، اور حکومت سے اپنے وہ بھی لے لیے، برات بھی لے لیے، اس کے بعد چینی کا ایک دم شارٹیج آ گیا. وہی چینی جو باہر پڑے تھے اسی چینی کو دوبارہ واپس لانے کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ بھائی ہمیں درخواستیں دے دو، ہمیں یہ کرو، ہمیں کوٹیشن دے دو کہ ہم کون کون اس میں مطلب ہے کہ ہم لا سکتے ہیں، کس کس ریٹ پہ لا سکتے ہیں. پھر وہی لوگوں نے پھر کوٹیشن دے دیے کسی اور نام سے، اور پھر وہی لوگوں نے وہ، تو ظاہر بات ہے
चीनी माफिया का इस मुल्क में, क्योंकि मिलों में हमारा खुद अपने लोग शरीक हैं और उनके मिल चलते हैं, वो ये नहीं चाहते कि पब्लिक को क्या तकलीफ़ होगी और आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं। उसको सहूलत और तकलीफ़ के गम नहीं है, उसको अपने पैसे का गम है कि हम एज ए सियासतदान आप क्या समझते हैं, कभी आटा शॉर्ट कर दिया जाता है खुद साख्ता तौर पर, कभी चीनी शॉर्ट कर दी जाती है, तो ये खेल कैसे ख़त्म हो सकता है? तो ये तो असल में मैं तो आपको ये कहता हूँ ना कि ये अगर हुकूमत इसके ऊपर काम करे, लेकिन हुकूमत कौन है, उसमें कौन लोग बैठे हैं, लोगों ने यही लोग भेजे हैं, तो मेरे ख़्याल में मुश्किल है कि अगर इस तरह है कि एहतसाब हो जाए और हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका, अभी आपने नहीं देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उनके अपने पुर्तगाल में वो जजीरे ले रहे हैं और जगह ले रहे हैं, और जब एक गवर्नमेंट में बैठा हुआ खुद जो मिनिस्टर है हमारा वो ये कहता है, तो मेरे ख़्याल में ये कहाँ से पैसे आते हैं? यही तरीक़ा बना के गरीबों को का खून चूसने के बाद उनको ये मिलता है। मेरे ख़्याल है, मैं तो ये कहता हूँ कि गरीबों के साथ उसको बिजली में भी सहूलत दी जाए, उनको गैस में भी दी जाए, उनको रेट में भी जाए। अभी तुर्कमानिस्तान को आप देखें, छोटा सा मुल्क है, लेकिन तुर्कमानिस्तान में ये है कि वहाँ के बिजली का आप देख लो बिल, आप गैस का फ्री, वहाँ पे आपका यूटिलिटी स्टोर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर एक स्टोर के ऊपर हुकूमत एक शीट बनाते हैं, उस मुतवस्सित लोगों को, गरीब लोगों को जिनका फैमिली ज़्यादा है, उसका मदनी कम है, उसको घर एक शीट बेचता है और वो उसे अपने करीबी स्टोर से वो उठाते हैं ना, कोई तस्वीर लेता है, कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, वहाँ पे मतलब है कि वो फिर अपना पेमेंट हुकूमत उसको करती है। मेरे ख़्याल में ये निज़ाम जो है ना, ये जो चलता है, ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा देर नहीं चलेगा। KUIFA की सीनियर रहनुमा शाहिदा अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम बताइएगा कि चीनी माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? शुगर मिल्स मालकान और ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं और ना सिर्फ दुकानदार बल्कि आवाम भी परेशान है। बिल्कुल परेशानी बजा है कि देखें, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि हम स्टेटिस्टिक को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं या हमें ये नहीं पता कि हमारी ज़रूरत कितनी है या पैदावार कितनी है। आप देख रहे हैं कि हर दूसरा महकमा जो है वो किस कदर प्रिविलेज ले रहा है और कितना उस पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सचेकर का कितना लॉस हो रहा है। इस हवाले से जब इस तरह ये गलत फिगर आती है, सेम स्कैंडल गंदम के हवाले से भी हुआ था कि यहाँ पे कहा गया था कि ज़्यादा है और हमने एक्सपोर्ट की और फिर उसके बाद कमी का इजहार करके इंपोर्ट। तो ये एक माफिया है जो सिर्फ चंद अशखास को जो है वो बेनिफिशरी बनाता है और उनके फ़ायदे के लिए होता है। और बदकिस्मती या अलमिया मैं ज़रूर कहूँगी कि यही है जो स्टेक होल्डर्स भी हैं और इन सीट्स पे भी हैं और वो अपनी ही तौर पे जो है वो इस तरह फिगर पेश करके अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा देते हैं, इज्तिमाइयत का नुकसान करते हैं। होना नहीं चाहिए। बीइंग अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हर फ्लोर पे हमने आवाज़ उठाई है और इसकी ट्रांसपेरेंट तहकीकात का मुतालबा किया है। और अल्लाह करे कि ये होश के नाखुन लें और इस आवाम पे रहम करें। और ये जो माफिया है, गिने चुने फिंगर टिप पे हर एक बता सकता है कि कौन है और क्यों अपनी ज़ात के लिए लगे हुए हैं। मैम आप ख़जाना कमेटी की मेंबर भी हैं और गाए बगाया आप ये आवाज़ उठाती भी रहती हैं चीज़ों पे। बताइएगा कि CCP ने वबांगे दोहल बताया है कि अरबों रुपए कमाए गए हैं शुगर मिल्स मालकान ने, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको ख़ुद बताया कि फिंगर टिप पे हर एक बंदे को पता है कि कौन इन्वॉल्व है और आखिर दम तक फाइनेंस कमेटी में हमें वो लिस्टें भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। वो तो आपको देखा है कि किस तरह इनसे बात मनवाई गई है। लेकिन फिर वही बात है कि इस पर चेक तो हमने कर लिया, लेकिन अब इसको कैसे कंट्रोल करें या इस पर कैसे रेट कायम करें तो ये गवर्नमेंट का काम है और जब गवर्नमेंट ख़ुद इन्वॉल्व हो तो फिर क्या कह सकते हैं। आज चीनी जो है वो नापैद है, दरामदात और बरामदात का खेल है। क्या तोहफ़ा दिया गया है वो? देखिए, चीनी का जो मामलात हैं वो तो हम लोगों ने और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने मिलकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना चाहिए। जो दो नंबरी करेंगे, जो करप्शन करेंगे, वो तो एक पाकिस्तान का आइन है, कानून है बना हुआ है, वो करना चाहिए। बाकी जो ये मामलात हैं, ये जो अगस्त का महीना स्टार्ट होता है, ख़ास कर अगस्त का महीना एक खुशी का महीना है, जश्न का महीना है और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को ये चीज़ें मिलकर जश्न मनाना चाहिए। इसके बाद में जो करप्शन करता है, जो चीनी की चोरें हैं या कोई और गलत काम करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सर वबांगे दोहल
CCP ने भी बताया है और बाकी भी जो मुतलका इदारे बता रहे हैं कि शुगर मिल मालकान ज़ख़ीरा अंदोज़ ये कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कहीं देखने में नज़र नहीं आ रही। नहीं, कार्रवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। पंजाब में 1-2 जगह पे कार्रवाइयाँ हो गए हैं, हमारे बलूचिस्तान में हो गए हैं कार्रवाइयाँ, और वो कार्रवाइयाँ नज़र आएंगे भी, और इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो डेटा पूरा तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। चीनी माफिया जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा सरगर्म होता है। इस साल भी जश्न आज़ादी के मौका पर भी दुकानदार भी लाइनों में लगे हैं कि तोड़े के लिए, और फिर आवाम को ब्लैक में बेच रहे हैं, या ये खेल कब ख़त्म हो? देखें, खेल की बुनियाद ही रखी गई है जब इसको कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बनाया है। जब तक आप डीरेगुलेट नहीं करेंगे, चीनी माफिया इसी तरह खेलता रहेगा, क्योंकि चंद ख़ानदानों के हाथ में है पूरे मुल्क की चीनी की प्रोडक्शन, और चंद जब लोगों के हाथ में होता वो पैसे दे के अपनी मतलब की पॉलिसी बनवा सकते हैं। जैसे कि इस हुकूमत के दौर में हुआ कि 7 लाख मेट्रिक टन की इजाज़त ली गई, और इजाज़त इस कंडीशन के साथ ली गई कि लोकल मार्केट में रेट नहीं बढ़ेगा, वाफर है चीनी। और आपने देखा चीनी बाहर गई, और जैसी बाहर गई और इस चीनी माफिया ने 200 से 250 अरब रुपया दिनों के अंदर कमाया, और आज भी आप देख रहे हैं कि आप 1.5 लाख मेट्रिक टन कहते हैं दोबारा वापस इंपोर्ट करनी है। तो ये कौन कर रहा है? ये खेल चंद लोगों के हाथ में है। सर, दुकानदारों, छोटे तबके के जो दुकानदार हैं उनको भी काबू किया जा रहा है, अवाम भी लाइनों में है, दुकानदार भी लाइनों में है तोड़ा लेने के लिए। ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है। इसके अलावा, इसके बावजूद इस पर कानून साजी नहीं की जा रही, ना गिरफ्त में आ रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़। देखिए, कानून साजी नहीं, बात है कि चीनी बनाने का हक चंद ख़ानदानों का क्यों नहीं है? कोई आम बंदा क्यों नहीं फैक्ट्री लगा सकता? बात है कि एक एक चीनी का NOC लेने के लिए अरबों रुपए की जब डीलें हों तो यही होगा, फिर लाइनों में लगना ही मकसूद होगा। सारी दुनिया देखें और तरह से चीनी बना रही है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, चंद लोगों में क्यों ये कारोबार दिया गया? जब तक इस कारोबार को ओपन नहीं करेंगे, इसी तरह लाइनें लगती रहेंगे। आप काश्तकारी को भी अच्छी तरह समझते हैं, क्या ये कमाद और गंदम को के काश्तकार को कमज़ोर करने की एक साजिश नहीं है कि अगले साल कमाद ही नहीं उगाया जाएगा? देखें, कमाद वालों के साथ तो जो किया, जो कटौतियाँ की गई, जो रेट कम दिया गया, वो सबके सामने है। देखें, ज़राअत को एज ए शोबा जानबूझ के बिठाया जा रहा है, खाली गंदम का मसला नहीं है। आपकी 4 मेजर फसलें सारों की कीमतें नीचे गई हैं, और ये क्यों गई है? क्योंकि किसान का इस्तेसाल कर रहे हैं। एक जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग को इस मुल्क में राइज करने के लिए, कि जिस तरह से चीनी माफिया है, ज़िम्मेदारों में भी और बड़े माफिया आ जाएं, हज़ारों एकड़ों वाले आ जाएं, और जो आज ज़िम्मेदार हैं उनके मजदूर बन के काम करें, ये वो साजिश है। मैडम, बताइएगा कि चीनी का जो बरामद और दरामद करने का खेल है ये चला है, अभी चीनी जो है वो नापैद भी हो रही है, महंगी भी मिल रही है, दुकानदार भी परेशान है और आवाम भी परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कल हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान सुना होगा कि यहाँ जो बाबू बैठे हुए हैं ना, ये सारा खेल उन्हीं का है, और वो चीनी के जो प्रोड्यूसर हैं, जिनकी मिलें हैं, मेरे ख़्याल में मिलों में तो इतना उनको फ़ायदा भी नहीं पहुंचता है। बाज़ दफ़ा जो है वो ट्रक्स मिलों के बाहर खड़ी रहती हैं, और जो उसका प्रोसेस है वो लेट होता है। लेकिन ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जिसके लिए हमारे इस्लाम ने भी मना किया है, अल्लाह का भी हुक्म है, हमारे नबी का भी फरमान है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो दोज़ख में जलाए जाएंगे। तो हुकूमत को इस पे कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को हम गुजारिश करते हैं कि उसका फ़ौरन नोटिस लें, और ये क्यों हो रहा है कि कभी दरामद हो रही है, कभी बरामद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है अपनी इजनास के हवाले से ख़ुद कफ़ील है। चाहे कितनी भी बारिशें हों, चाहे आपको याद होगा 2013 की जो हुकूमत थी, 8 की जो हुकूमत थी, उसमें 2009 और 10 में जो बारिशें हुई, सैलाब आए, उसके बावजूद भी हम गंदम के मामले में जो थे वो हमने बरामद नहीं की थी, हमने दरामद की थी। लेकिन बस वो जो बाबू बैठे हुए हैं ना, उनको अल्लाह ही समझाए। बताइएगा कि चीनी माफिया जो है दोबारा सरगर्म है, और दुकानदार भी लाइनों में लगे हुए हैं, और 1-1 किलो चीनी के लिए जो है वो आवाम तरस रही है और महंगी भी मिल रही है। देखें, चीनी का वाकई बहुत बड़ा इशू है, और ये आज से नहीं, ये दहाइयों से है। वजह उसकी ये है कि कुछ शुगर मिल मालिकान हैं जिन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है, कार्टेल बनाया हुआ है। वही लोग सियासत में भी हैं, फ़ैसले भी करते हैं, और टोटल 25-30 लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि चीनी का रेट क्या होगा। ख़ुद ही उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इजाज़त दे के हुकूमत इजाज़त दे देती है कि एक्सपोर्ट कर लें, ज़्यादा है,
फिर जब रेट बढ़ता है फिर इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए वो कमेटी बनी हुई है, हमने उसमें सारे मिल मालिकान की भी लिस्टें मंगाई हुई हैं, SCCP से FBR को भी बुलाया हुआ है, बाकी सारे इदारे हैं। इंशाल्लाह इसके लिए देखेंगे कि इसका कोई परमानेंट हल निकल आए इंशाल्लाह। सर CCP ने तो कुछ अर्सा पहले वाज़े तौर पे बता दिया था कि अरबों रुपए मिल्स मालकान ने ये दरामद और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कमाए हैं, उसके लिए कोई ख़ास तदारुक किया जाएगा? लिस्टें भी सुना है अभी तक कमेटियों को नहीं दी गई। लिस्ट मेरे ख्याल में PSC को दे दी गई है, हमें भी दे देंगे, लेकिन इसका परमानेंट हल मेरे हिसाब से ये होगा कि हम इसको डीरेगुलराइज कर दें। मकसद इसका ये है कि अभी सूबे इजाज़त नहीं देते कि जी मिल कोई लगाए, वहाँ पे रोका हुआ है क्योंकि मौजूदा मालिकान बड़े बासर हैं। तो हमारी तरफ से तो यही प्रपोज़ल है, मेरी ज़ाती यही प्रपोज़ल है कि इसको डीरेगुलराइज किया जाए, लोगों को इजाज़त दी जाए कि जो शुगर मिल लगाना चाहता है लगाए। कंपटीशन बढ़ेगा और उससे होगा ये कि अगर एक ज़िले में एक मिल है, वही अपना रेट तय करते हैं, वही पेमेंट अपने हिसाब से करते हैं, तो अगर वहाँ पे 5 मिलें लग जाती हैं तो बस ठीक है, कंपटीशन होगा, कम से कम आम आदमी को तो उससे रिलीफ मिलेगा। तो यही हल है कि इसको डीरेगुलराइज किया जाए। जो शुगर मिल लगाना चाहता है अपने लिए गन्ना अगर पूरा कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो नहीं करेगा। मार्केट में कंपटीशन होगा और रेट कम होगा। चीनी माफिया दोबारा सरगर्म है, हुकूमत बज़ाहिर कोशिश कर रही है, CCP की जानिब से बताया जा रहा है वो बांगे दोल ख़जाना कमेटियों में कि अरबों रुपए शुगर मिल्स मालकान कमा चुके हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म है। क्या तदारुक किया जा सकेगा? देखिए जी, सिर्फ ये जो माफियाओं का सवाल है, इस मुल्क में सिर्फ चीनी माफिया नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिधर ये मोनोपली बन चुकी है, माफियाज बन चुकी हैं। वो हेल्थ की सूरत में हो, ख्वाजा आसिफ का आपने खुद ही ट्वीट देखा था कि जो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर जो हमारे मुश्किलात सामने आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने यहाँ से कमा कर अभी आज जजीरा। तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें हम इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रख सकें। अकाउंटेबिलिटी का हमारे पास कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। नैब को हमने बिठाया हुआ है, जो हमारा जो क्वालिटी चेकिंग है वो ऐसे सिटिंग डक्स हैं, उनका ना ही उनके पास कोई पंजा है और ना ही उनके पास जो तेज़ दांत है, वो ना ही किसी को पकड़ सकते हैं और ना ही किसी को चबा सकते हैं। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों पर काम करना होगा और हुकूमत से हमारी भी दरख्वास्त है एज ए नौजवान भी, एज ए पार्लियामेंटेरियन, के इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चेक एंड बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी पे काम करते हैं, इन पर ठोस इक़दाम लिया जाए ताकि आइंदा के दिन ये जो हक तलफियाँ हो रही है किसी के साथ ना हो जाए। अब नौजवान सियासतदान है, बताइएगा जो दहाइयों से एक सिलसिला चला आ रहा है कि बरामदात दरामदात दरमियान में ज़ख़ीरा अंदोज़ सबको, फिर बात की जाती है कि जी पीछे से इनको पॉलिटिशियंस जो हैं वो बैक कर रहे हैं, तो इसका तदारुक कैसे हो सकता है जब पॉलिटिशियंस उनको पीछे सपोर्ट? देखिए जी, हम जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हम हर वक्त हमारे एक वो है कि हम हर वक्त आवाम का सामना करते हैं और हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आवाम ही करती है। अगर आज 5 साल हम कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाते हैं या डिलीवर नहीं कर पाते, आवाम हमें वो कभी भी वोट नहीं देगा। जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कोई अकाउंटेबिलिटी ठहराता नहीं है, और जो भी पॉलिटिशियन का हाथ किसी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और ख्वाहिश ये करते हैं कि उससे गुरेज किया जाए। चीनी की कीमत जो है 173 रुपये पर किलो है। इससे ज़्यादा जो बेचेगा शहरियों को भी चाहिए तावन करें और इसकी रिपोर्ट करें, और जो लोग इस माफिया को कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सद्देबाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है हम करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने यह बात तस्लीम की है कि मुख्तलिफ शुगर मिल्स मालकान और मुनाफाखोरों को चीनी की मद में अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया है। मुसाबकती कमीशन की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट्स को भी ख़जाना कमेटियों में पेश किया जाएगा और लिस्टें भी मंगवाई गई हैं, लेकिन अभी तक ख़जाना कमेटियों में लिस्टें नहीं पहुँची, ये भी बताया गया है सियासतदानों की जानिब से। लेकिन सियासतदानों का ये रवैया नज़र आता है कि शायद इनका एहतसाब ना किया जा सके, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, और ना ही इन शुगर मिल्स मालकान को फ़ायदा पहुँचाया जाना बंद किया जा सकेगा। लेकिन इसका तदारुक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ये कहना है सियासतदानों का। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।